Hello everyone. In the last lecture, we discussed about the biological nitrogen fixation which takes place by prokaryotic microorganisms. In those organisms, a enzyme is present, that is nitrogenase enzymes. So in this video, we study the biochemistry of nitrogen fixation, how that enzyme fixes the nitrogen. In the phenomenon of biological nitrogen fixation, nitrogen is reduced to ammonia, and this process is catalyzed by an enzyme complex that is nitrogenase enzyme. This enzyme is found in the nitrogen fixing bacteria or nitrogen fixing prokaryotes, and this process required the energy in the form of ATP and reducing power in the form of electrons. So overall reactions for the nitrogen fixation is nitrogen molecule plus 8 protons plus 16 ATP plus 8 electrons give rise to 2 molecules of ammonia, 1 molecule of hydrogen, 16 ADP and 16 inorganic phosphates. So by seeing these reactions, we can conclude that it is a very energy consuming reactions, because for 1 molecule of nitrogen converting into 2 molecule of ammonia, large amount of ATP is used, that is 16 molecule of ATP are used. So basic requirements for nitrogen fixation are: first is nitrogenase enzymes and mechanism of nitrogen fixation in that particular prokaryotes or bacteria. Second is source of energy, means जो ATP है उसकी भी requirement होगी and reducing power और electrons की भी ज़रूरत होगी. तो second क्या होगा, जो requirement होगी, that is source of energy in the form of ATP and reducing power. Third is removal or utilization of हाइड्रोजन एंड NH3 प्रोड्यूस्ड. जो यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, इसको भी यूटिलाइज होगा, यहाँ से इसका रिमूवल होगा जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. तो दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट. Now we will study the structure of nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme is a complex enzyme that is made up of two components. First component is this Fe protein and second component is this MOFE protein, and both of these are non catalytic activity, means itself ये catalytic activity नहीं है इसमें. इसको reduce करता है कोई जो reducing power है ferredoxin, then it will catalyze the nitrogen and then it will catalyze the reaction of nitrogen fixation. So first we will discuss the structure of Fe protein. Fe protein is the smaller component. This MOFE part is the bigger component and this Fe protein is the smaller component. It is made up of two units. It is made up of these 2 units, and these 2 units are weight up to 30 to 72 kilodalton. ये vary करेगा depending upon the organism, उनके ऊपर जो भी बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके साथ में इसका जो वेरिएशन है नाइट्रोजनेज एंजाइम के यूनिट्स में, that will vary. These units are made up of iron sulfur cluster. ये iron sulfur cluster से बनेंगे और एक यूनिट के अंदर 4 आयरन एंड 4 सल्फर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. These both unit participates in the redox reactions, और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन. जैसे ये है, यहाँ पे आयरन है वो रिड्यूस्ड होगा with the help of reduced ferredoxins and this oxidized form will get converted into reduced form of आयरन. तो इस टाइप से ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की जो साइकिल इसमें चलती रहेगी और अल्टीमेटली क्या है, ये नाइट्रोजन को किस में रिड्यूस कर देगी, अमोनिया में. This Fe protein is irreversibly inactivated by the oxygen, but if there is oxygen present during the reaction, then that oxygen will inactivate this Fe protein unit, and the typical half decay time for that is that inactivation is 30 to 45 seconds. Second component is this MOFE protein. This is the large subunit and complex unit. It is made up of it is also made up of 4 unit and MOFE. Total mass of this MOFE protein is 180 to 235 kilodalton. It also varies according to the genus and organism.
each subunit has 2 MOFE clusters. Here these are the 2 MOFE clusters, one is this and one is this. So this is made up of 2 MOFE. जो आयरन और सल्फर है वो तो फर्स्ट यूनिट में भी प्रेजेंट है, जो इसमें एक्स्ट्रा है सेकेंड यूनिट में वो क्या है, मोलिबिडिनम. MO से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. दिस MOFE प्रोटीन इज ऑल्सो इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन बट हाफ डीके टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द FES protein unit, that is here half decay time is 10 minutes for this MOFE protein. So this is the structure of nitrogenase enzyme which catalyze the nitrogen fixation in prokaryotes or nitrogen fixing bacteria. Mechanism of nitrogen fixation means how this nitrogen fixation occur with the help of these enzymes. First क्या होगा, जो फेरिडॉक्सिन है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड जब ये फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसको रिड्यूस करेगा, जो आयरन यूनिट है फर्स्ट, उसमें जो आयरन प्रेजेंट है फर्स्ट एफी प्रोटीन में, दैट विल रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस फेरिडॉक्सिन, दिस रिड्यूसिंग पावर्स. और ये रिड्यूसिंग पावर्स कहाँ से आएंगी, जो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस है, वहां से इसको मिलेंगी. तो इट विल गेट रिड्यूस्ड. जब रिडक्शन होगा इसका तो ये क्या करेगा, एक तो जो ATPs है उसको कन्वर्ट, ATP को एसिमिलेट करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा 16 ADP में. तो ATP की जो एनर्जी है वो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे जो एफी प्रोटीन है वो यूज करेगा ड्यूरिंग रिडक्शन. उसके बाद जब ये रिड्यूस फॉर्म में होता है तो उसके साथ में क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, MOFE प्रोटीन को. तो जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट था मोलिब्डेनम और आयरन यूनिट, दैट आयरन विल गेट reduced, and that reduced iron of MOFE protein ultimately reduced the molecular nitrogen to 2 molecule of ammonia and 1 molecule of hydrogen. So this is the mechanism of nitrogen fixation. तो अल्टीमेटली क्या है, इसमें जो एनर्जेटिक है वेरी कॉम्प्लेक्स है और हाईली एनर्जेटिक रिक्वायर्ड प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे 2 Mg एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और उसके लिए ATP कितना यूज हो रही है, टोटल रिएक्शन में 16 ATP यूज हो रहे हैं. तो पर इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे 2 ATPs यूज होंगे. These are the overall reactions for nitrogen fixation. First step में क्या है, जो molecular nitrogen combined with 2 protons and 2 electrons form the diamide. Then this diamide again combined with 2 protons and 2 electrons and form hydrazine. This hydrazine combined with 2 protons and 2 electrons and ultimately form the ammonia. अब हम इन 3 reactions को देखते हैं तो इसमें क्या है, हमें क्या लग रहा है, सिर्फ 2, 2 and 2. तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, जबकि हमने इसकी जो अल्टीमेट रिएक्शन देखी, जो टोटल रिएक्शन है वहां पे क्या है, 8 हाइड्रोजन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो जो 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ यूज होंगे, जो 1H2 मॉलिक्यूल भी बन रहा है वहां पे उसके प्रोडक्शन के लिए यूज होंगे. और जो H2 नाइट्रोजन का फिक्सेशन है दैट इज ऑब्लिगेटरी लिंक्ड विद द रिडक्शन ऑफ 2 प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ में होगी ही होगी, ये ऑब्लिगेटरी प्रोसेस है इसके साथ में, बिकॉज जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है दैट हैज एन एलोस्टेरिक बाइंडिंग साइट फॉर द प्रोटॉन्स. और अगर ये 2 प्रोटॉन्स इसके साथ में बाइंड नहीं करते तो जो N2 है मोलिकुलर नाइट्रोजन है वो भी इसके साथ बाइंड नहीं करेगी और इसकी जो एफिशिएंसी है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वो रिड्यूस हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई हियर इंस्टेड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन हियर आर 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. जो 2 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में यूज होते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने में. नाउ कम्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज. जैसे ही हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो ऑक्सीजन से सेंसिटिव है, कि ऑक्सीजन उसको स्टॉप कर देता है. तो फिर कैसे करेंगे, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, क्योंकि वह एरोबिक है तो ऑक्सीजन तो उनके अंदर प्रेजेंट है. तो इसी प्रोसेस को अडेप्ट करने के लिए कि वो एरोबिक कंडीशंस में भी अपने जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको एफिशिएंटली कर सकें, तो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म है.
तो फर्स्ट एक मैकेनिज्म उनमें से लेग हीमोग्लोबिन, हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन का पढ़ा भी है, स्ट्रक्चर भी पढ़ा है, उसका रोल भी पढ़ा है। तो जो राइजोबिया बैक्टीरियाज हैं उनके राइजोबिया कॉम्प्लेक्स हैं वहां पे प्रेजेंट होता है ये प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे लेग्यूम प्लांट्स में लेग हीमोग्लोबिन। और लेग हीमोग्लोबिन कैसे काम करेगा, कैसे जो एक्सेस ऑक्सीजन उसको कम करता है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन जो एक्सेस ऑक्सीजन है उसके साथ बाइंड कर देता है और उसको कंट्रोल को रिलीज करता है, एक्सेस ऑक्सीजन को रिलीज नहीं होने देता बैक्टीरियोइड रीजन में, और वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिससे नाइट्रोजिनेज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड क्या है, जो बहुत सारे मैनी लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है दैट इज एनाएरोबिक और फैकल्टेटिव, कि एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों है। बट फैकल्टेटिव के केस में क्या है, जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा उस टाइम पे वो एनाएरोबिक कंडीशंस में करेगा, तो वहां पे उनको किसी और मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। थर्ड है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर में क्या है, उसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इतनी हाई है कि वो मोस्टली ऑक्सीजन को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होगी उस टाइम पे ऑक्सीजन उसको नहीं होती, वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस होते हैं, एनाएरोबिक टाइप कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एफिशिएंटली होता है। फोर्थ है हेट्रोसिस्ट, जो भी हमने मोस्टली पढ़ा भी है जब एल्गी की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सियानोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। दीज आर द थिक वॉल सेल्स, और ये हेट्रोसिस्ट क्या करेंगे, दिस प्रिवेंट द फ्री डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाया है, तो ये थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में। सभी सेल्स में नहीं होती, इन हेट्रोसिस्ट में ही होती है, बिकॉज दिस हेट्रोसिस्ट प्रिवेंट द फ्री डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो दिस ऑल आर द एडेप्टेशंस फॉर द रिमूविंग द सेंसिटिविटी ऑफ नाइट्रोजिनेज। नाउ कम्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिड्यूसिंग पावर, कि यहाँ पे जो इतनी एटीपीज यूज हो रही हैं, जो रिड्यूसिंग पावर फेरेडॉक्सिन यूज हो रही है, वो कहाँ से आ रही हैं सारे, तो ऑल दिस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स जो बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उनका क्या होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस जो हमने पढ़ा है सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, वहां से क्या है NADH की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये रिड्यूसिंग पावर बन रहे हैं, यहाँ से फेरेडॉक्सिन्स बन रहे हैं, रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP बन रही है। तो ये सारे कहाँ से, जो फोटोसिंथेट्स का कैटाबॉलिज्म हो रहा है वहां से जो एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर वहां से इसको मिलती है। यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो साथ में निकल रहे हैं, जो कि एक हम मानते हैं कि एनर्जी की वे में अगर हम देखें तो वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है, बिकॉज इट कंज्यूमिंग द एनर्जी। हमारा तो पर्पस क्या है, सिर्फ जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना तो उसका पर्पस है ही नहीं, तो वो बेफालतू में एनर्जी को यूज कर रहा है, तो इट्स ए वेस्टफुल प्रोसेस। बट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म H2 इज नॉट रिलीज्ड इन द एटमोस्फियर। जो बहुत सारे ऐसे हैं उनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक हाइड्रोजनेज एंजाइम, जो कि वहां पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले हैं उसको वापस से रिसाइकल्ड बैक टू जनरेट ATP को जनरेट कर देता है, और इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय द हाइड्रोजनेज एंजाइम। सो इन दिस वे रिसाइकलिंग ऑफ H2 सेव्स एनर्जी, और इसके साथ साथ में ये एफिशिएंसी भी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। नाउ कम्स टू फेट ऑफ फिक्स नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन फिक्स हो गई है, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई है, तो इसका क्या होगा, क्या यही अल्टीमेट सोर्स है, बस अमोनिया बन गया। तो ये जो अमोनिया फॉर्मेशन है, इट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द नाइट्रोजन, नॉट द अल्टीमेट फेट ऑफ द नाइट्रोजन। these vary according to the organism। जैसे सियानोबैक्टीरिया है, सियानोबैक्टीरिया जो फ्री लिविंग बैक्टीरियाज हैं, तो उसके अंदर क्या है, जो नाइट्रोजन है या तो डिफ्यूज आउट हो जाएगी सेल के अंदर, या फिर वो क्या है उसको सोयल में ऐड हो जाएगी। जैसे ही सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी की डेथ होती है तो वो कन्वर्टेड हो जाएगी अदर कंपाउंड्स में सोयल में जाके, जिसकी वजह से प्लांट्स उसको एसिमिलेट कर सके, प्लांट उसको यूज कर सकें। लेग्यूमिनस प्लांट्स में है जो अमोनिया डिफ्यूज्ड आउट इनटू द पेरीबैक्टीरोइड मेम्ब्रेन, कि वहां पे क्या है जो नोड्यूल्स बने, रूट नोड्यूल्स, वहां पे जो पेरीबैक्टीरोइड मेम्ब्रेन है, तो वो बैक्टीरोइड्स क्या करेंगे, जो अमोनिया वहां पे सिंथेसाइज हुई है वो किसको, उसको माइटोकॉन्ड्रिया या जो साइटोसोल है वहां पे उसको डिफ्यूज कर देंगे, और उसके बाद वहां से वो क्या करेगी, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड या अमाइनो एसिड के साथ में कंबाइन करेगी।
So now this ammonia is get converted into amino acids and amides respectively, but some amount of ammonical nitrogen may get converted into nitrites or nitrates through ammonium assimilation with the help of nitrification, and molecular nitrogen also by the process of denitrification. So this ammonium formation is not the ultimate fate of the molecular nitrogen. It also get converted into other forms like nitrate, nitrites, and also reverse back converted into the molecular nitrogen. Thanks. It is all about the biochemistry of nitrogen fixation. In the next video we will discuss the assimilation of nitrogen from ammonia to nitrate and nitrites. Thanks.